غزہ میں گزشتہ 18 ماہ سے اسرائیلی بربریت بلا روک ٹوک جاری ہے اور اب اس میں پہلے سے زیادہ شدت سامنے آ رہی ہے۔ غزہ اس وقت مکمل تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسرائیل ظلم کی تمام حدیں پار کر رہا ہے۔ غزہ کے اسکول، اسپتال اور پناہ گاہیں سب اسرائیل کے نشانے پر ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے نہ صرف عمارتیں زمیں بوس ہو رہی ہیں بلکہ روزانہ درجنوں فلسطینی ان حملوں میں زندہ جل رہے ہیں۔ چھوٹے معصوم فلسطینی بچے اسرائیل کی اس نسل کشی مہم کا سب سے زیادہ نشانہ بن رہے ہیں۔ غزہ میں صرف پیڑ سے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک 80 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ انہی حملوں میں کل غزہ سٹی میں بے گھر افراد کی پناہ گاہ میں تبدیل ایک اسکول بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اس حملے میں 36 سے زائد فلسطینی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے، جن میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے جو آگ میں جھلس کر شہید ہو گئے۔ اس حملے کے دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آئے ہیں۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں دکھایا ہے کہ کس طرح سول ڈیفنس کے کارکن اسکول سے فلسطینیوں کی جھلسی ہوئی لاشیں نکال رہے ہیں۔ اس بچی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا، اور یہ بچی جواب دیتی ہے کہ میرے ساتھ میری بہن تھی اور ساتھ ماں بھی تھی، اور دونوں اس وقت ملبے کے نیچے ہیں۔ یہ غزہ کا وہ اسکول تھا جسے عوام کے لیے پناہ گاہ میں بدل دیا گیا تھا، مگر اس پر اسرائیلی فوج نے حملہ کر دیا۔ یہ بچی تو بچ گئی مگر بہت سے دوسرے لوگ نہ بچ پائے، اور اس حملے میں مارے جانے والے زیادہ تر بچے ہیں۔ رات کو اچانک اس بمباری سے اس اسکول کے کلاس رومز میں آگ لگ گئی، جہاں زبردستی اپنے گھروں سے نکالے گئے فلسطینی سو رہے تھے۔ جلی ہوئی لاشیں اس وقت نکالی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ اسرائیلی فوج نے اس جگہ پر متعدد میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یہاں پناہ لیے ہوئے بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں اور خواتین اور بچوں کے جسم کے اعضاء مل رہے ہیں۔ اسرائیل کی مقبوضہ فوج بلا تفریق مردوں، عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے معصوم لوگوں پر حملہ کیا گیا اور ان کے جسم بری طرح جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ غزہ میں ایک اور جگہ اپنا گھر چھوڑ کر پناہ لینے والے فلسطینیوں کے ایک اور پناہ گزین کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایک خاندان کے 6 افراد مارے گئے ہیں، جن میں ماں باپ اور ان کے 4 بچے شامل ہیں۔ 20 ماہ سے زائد جاری رہنے والی اس جنگ میں یہ مناظر اب عام ہو چکے ہیں۔ وہ خاندان جو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور پناہ لینے پر مجبور ہوئے تاکہ ان حملوں سے بچ سکیں، انہیں ان پناہ گزین کیمپس میں بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بننا پڑا۔ اسرائیل غزہ کی پٹی پر اپنی کارروائیوں میں تیزی لا رہا ہے، حالانکہ اس کے اپنے اتحادی اس پر زور دے رہے ہیں کہ اسرائیل سیز فائر کرے، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا ہے۔ فلسطینی عوام مسلسل سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر ابھی ان کے مطالبے کو ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس حملے کے دوران پناہ گاہ میں موجود ایک 5 سالہ فلسطینی بچی معجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ وہ اکیلی بچی خطرناک آگ کے شعلوں سے کیسے بچتی ہے اور اسے کیسے ریسکیو کیا جاتا ہے؟ برطانوی نشریاتی ادارے چینل 4 نے بچی کا انتہائی دردناک انٹرویو شیئر کیا ہے، جس میں وہ معصوم بچی خود بتاتی ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ بچی آگ کے شعلوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ 5 سالہ ورد جلال الشیخ خلیل ہے، جس کی پوری دنیا اس کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ وہ غزہ پٹی کے اس اسکول کی چھت پر تھی، جسے رات 1 بجے اسرائیلی فوج نے فضائی حملے کا نشانہ بنایا۔ یہ اسکول ایک پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جس میں متعدد خاندان پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر دہشت گردوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ 30 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور جو بچ گئے ان کے لیے زندگی کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ اس وقت اسرائیلی ڈرونز اوپر گھوم رہے ہیں، جن کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں، اور وارد اپنے پیاروں کی جھلسی لاشوں کے درمیان بیٹھی ہے۔ وہ یہ مناظر دیکھ کر دنگ رہ گئی ہے، حیران و پریشان ہے، شدید صدمے کا شکار ہے۔ یہ بچی اپنے جسم پر چند زخموں کے ساتھ زندہ بچ گئی۔ اس ننھی سی بچی کو پتا ہے کہ اس کے 2 بھائی اور 3 بہنیں مارے جا چکے ہیں۔
मगर इसकी वालदा भी मारी जा चुकी है। इस बच्ची का एक भाई और बाप बच गए, मगर वो भी बुरी तरह जख्मी है। गजा में 54,000 लोग मारे जा चुके हैं। ये छोटी बच्ची अपने अंकल का हाथ पकड़े जा रही है और ये बच्ची भी अपनी माँ, बहनों और भाइयों को खो चुकी है। ये बच्ची मुतादिद दफा अपने घर वालों के साथ जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर चुकी है। इसने अपनी जिंदगी के 1/3 हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जंग और तबाही देखी है और अभी इस जंग और तबाही का खतरा जारी रहेगा, क्योंकि इसराइल का दावा है कि वो गजा में फौजी कार्रवाई जारी रखेगा जब तक कि उसे फतह नहीं हो जाती। और पता नहीं इसराइल के लिए फतह का मतलब क्या है। आज इसराइली फौज ने गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयों की फुटेज जारी की है, मगर उसमें स्कूल पर की गई बमबारी की फुटेज नहीं है। अब फौज बमबारी के अलावा कम ही लड़ाई करती है, क्योंकि हमास इस तवील लड़ाई के बाद कमजोर हो चुका है। इन सिपाहियों को अब गजा को 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए भेजा गया है, ताकि जो आबादी बची है, जो बच्चे जिंदा बचे हैं, उन्हें इसराइल कंट्रोल कर सके। अगर ये बच्ची अगले हमले में बच भी गई तो भी सारी जिंदगी अपने प्यारों को खोने के गम में ही रहेगी। इसी तरह हालिया इसराइली कार्रवाइयों की वजह से सिर्फ गुज़िश्ता 10 दिनों में 1,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी एक बार फिर बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा इसराइल की जानिब से तकरीबन 3 माह तक गजा को मिलने वाली इमदाद पर पाबंदी के बाद अब गजा में इसराइली फोर्सेस की निगरानी में इमदाद की तकसीम का एक मुतनाज़ प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम आलमी इदारों ने इस प्रोग्राम को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मुस्तरद कर दिया था, जबकि इस प्रोग्राम से मुंसलिक एक अमरीकी हिमायत याफ्ता NGO के सरबराह ने भी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इसराइल की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम का आज से बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता NGO गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में इमदाद की तकसीम का आगाज़ कर दिया है। हालांकि इस NGO के सरबराह ने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों ने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ काम करने से इनकार करते हुए खबरदार किया है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की सरगर्मियाँ मौजूदा इमदादी कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और खुराक तक रसाई को गजा के चंद इलाकों तक महदूद कर सकती हैं। इससे शहरियों को तवील फासला तय करके इमदाद हासिल करनी पड़ेगी और इसके लिए उन्हें इसराइली फौजी चौकियों से गुजरना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तशवीश ये भी है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी तकसीम के मंसूबे दरअसल इसराइल के उस मुमकिना मकसद को आगे बढ़ा सकते हैं जिसके तहत शुमाली गजा की आबादी को कम करके इमदाद को जनूबी इलाकों तक महदूद किया जाएगा। गजा में हालिया इसराइली इक़दामात इस कदर शदीद हैं कि अब इसराइल के अहम तरीन आलमी इत्तेहादी भी इन इक़दामात पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गजा में 18 माह से ज़ायद जारी जंग के दौरान इसराइल को आलमी रहनुमाओं और इमदादी तंजीमों की शदीद तनकीद का सामना तो करना पड़ा, लेकिन उसे अपने करीबी इत्तेहादियों की जानिब से बहुत कम ही ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। मगर अब सूरत हाल बदल रही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान अमरीका, बरतानिया और फ्रांस जैसे इत्तेहादी ममालिक इसराइल पर खुलेआम दबाव डालने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार नजर आ रहे हैं। इस दबाव का सबसे वाज़ेह इजहार इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे की अपील थी। सदर ट्रंप ने न्यू जर्सी में एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हम इसराइल से बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पूरी सूरत हाल को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ख़त्म किया जाए। ये बयान सदर ट्रंप के उस मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है जो उन्होंने जनवरी में ओहदा संभालते वक्त इख्तियार किया था, जब उन्होंने जंग के जारी रहने का इल्ज़ाम इसराइल के बजाय हमास पर लगा दिया था। उस वक्त वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी कर रहे थे। सदर ट्रंप का ये ताज़ा बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब जर्मनी, जो आमतौर पर इसराइल का हिमायती रहा है, उसने गजा पर इसराइल के बढ़ते हुए हमलों पर गैर मामूली तौर पर सख्त तनकीद की है। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पीर को एक इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त इसराइली फौज गजा में जो कुछ कर रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आम शहरियों को इस कदर अजियत देने का मकसद क्या है। जर्मनी के मौक़िफ़ में इस तब्दीली से चंद दिन पहले इटली की दाएं बाजू की हुकूमत ने इसराइल से मुताल्लिक गैर मामूली तौर पर सख्त बयान दिया, जो आमतौर पर इसराइल की हिमायत करते आए हैं। इटली के वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू को गजा पर हमले फौरी तौर पर बंद कर देने चाहिए। हमें फौरी जंग बंदी की ज़रूरत है और हमास को यरगमाल बनाए गए अफराद को छोड़ देना चाहिए और गजा से निकल जाना चाहिए। इस बयान से पहले बरतानिया, कनाडा और फ्रांस ने भी इसराइल की जानिब से गजा में हमले बढ़ाने के फैसले पर तनकीद की थी। बरतानिया ने इसके बाद इसराइल के साथ तिजारती बातचीत मुअत्तल कर दी थी और उन इसराइली अफराद पर पाबंदियाँ लगाई जो मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिशों में शामिल हैं। ये बरतानिया की जानिब से इसराइल के खिलाफ एक बड़ा कदम है। दूसरी तरफ फ्रांस और सऊदी अरब मिलकर
जून में एक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहे हैं जिसमें फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर बात होगी। हालांकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन इन तमाम बयानात और इक़दामात के बावजूद ये ममालिक अब भी फ़ौजी, मुआशी और इंटेलिजेंस ताउन के ज़रिए अमली तौर पर इसराइल की मदद कर रहे हैं। लेकिन इन ममालिक के पैगामात के लहजे में आने वाली तब्दीली और इसराइली मफादात से मुताल्लिक कुछ अमली पाबंदियाँ ये ज़ाहिर करती हैं कि इसराइल के सबसे करीबी साथी अब नेतन्याहू से मायूस होने लगे हैं, उनका सब्र ख़त्म होता जा रहा है। ताहम फ़िलहाल इसराइल पर इसका कोई ख़ास असर नज़र नहीं आ रहा। यूरोपीय धमकियों के जवाब में इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर इसराइल के खिलाफ मज़ीद इक़दामात किए गए तो उनका मुल्क अपनी तरफ से एकतरफ़ा इक़दामात करेगा।